ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم آواز میں کچھ نہیں کرا کچھ نہ کرو آپ ہمیں سمجھاؤ نا چھوڑ دو اس کو بس اپنا مائک رکھنے چلے جائیں ہم نے کہا کہ چھوڑ دو بس اتنا کرو ایسے ہم نے کہا چھوڑ دو اتنا کرو سمجھاؤ نا آپ حضرات سے گزارش ہے کھانے کے بڑھائیے بھیا جی حرکت میں برکت ہے یہ فرمایا آپ حضرات بھی ذرا سر جو بستر اس کو اٹھا لیں گے یہاں پر الگ الگ ہو کے نہ بیٹھیے نقصان ہوگا اس سے دیکھیے نعت خوانی میں میک کو منہ میں رکھا جاتا ہے تقریر میں دور رکھا جاتا ہے ہمارے رفیق حضرت مولانا قاری اسحاق صاحب مدظ اللہ العالی بیان فرمانے ایک والی سے زیادہ دوری تھی اس کی صحیح طریقہ وہی ہے بیان کے لیے میک کی دوری کا تو حضرت والا کی عمر تو مجھ سے زیادہ لگتی تھی حالانکہ عمر میں مجھ سے 2 سال کم ہے قاری اسحاق صاحب تو بہرحال مجھ سے محبت کرتے ہیں اصل طریقہ وہی ہے تو نعت خوانی میں منہ میں رکھا جاتا ہے میں تقریب میں دور کیا جاتا ہے یہ آپ سیکھے رہیے گا ہمیشہ کے ورنہ دشواری بات نہیں درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم بڑی دیر سے آپ حضرات ایک بعد دیگر حضرات علماء کرام کے بیانات سے نعت و منقبت کے اشعار سے اور قرآن مقدس کی تلاوت سے مستفید ہوتے چلے آئے ہیں رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے تھوڑے وقت کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے تو پوری توجہ چاہیے جو حضرات آگے ہیں ان سے پوری توجہ پیچھے ان کی مرضی والد صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی یہ محفل ہے آقا کی بیٹھو تب سے یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی لائق صد احترام حضرات علماء اکرام و معزز سامعین نظام وہ پردہ نشین خواتین اسلام و بانیان جلسہ بہت مختصر سی قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے چچا میاں ادھر ذرا سا اور اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے حضرت مفتی صاحب نے بڑا جامع بیان فرمایا ہمارے رفیق حضرت قاری اسحاق صاحب نے بہت بھیا کوئی بیماری ہوتی آواز بڑھاؤ اس کی تو ہاتھ نہ لگانا دوبارہ
अरे तुम पागल हो पूरे, तुमको किसी ने जिम्मेदार बनाया? तुमसे मैंने कहा हाथ न लगाओ, चाहे भले बंद हो जाइए, हाथ नहीं लगाने। बीमारी होती है किसी किसी, कभी आपने रास्ता चलते हुए देखा पागल को बूढ़ा कहता, क्या करिएगा? 5 लोग बगैर पूछे मशवरा देते, ये भी बीमारी हो गई। एक लबलब मिला हमको वही अभी हमारे जहाँ से वो ये वहाँ पटरौना से आके सर दर्द हो गया बयान के बाद, कहा हजरत यहाँ से देवरिया गाड़ी जाते तो वहाँ, तो मैंने कहा तुमसे हमने पूछा है, सफर हम करेंगे, हम समझते हैं रास्ता कैसा क्या, वो जरूरत हमारी है, आप समझाना सिर्फ जगह छोड़ दो। तो अब जबरदस्ती मशवरे की बीमारी भी हो गई। अरे कोई पुस्तक मशवरा दो ना, मसल्ला सही से। और जिसको देखो कम है, अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं जितना बदअकल आदमी होगा ज्यादा बोलेगा, और जो अक्लमंद होगा वो मजमे के किनारे बैठेगा, बाद में बोलेगा। उल्मा बैठे मालूम बोलो गुलिस्तान दोस्तान, ये इसकी आवाज थोड़ा बढ़ाओ, हमको तो देखो आवाज बढ़ा, 200 रुपया वो हमको ठीक के ले लेना, और बढ़ाओ। हाँ, अब ये आवाज चाहे तेज हो चाहे से आप हाथ में लगाना इसमें। तो बहुत मुख्तसर सी आयते करीमा का इंतखाब मैंने किया है। अब लोग ऐसे ऐसे चले हैं, यहाँ उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं और हमारे हजरत मौलाना भी हैं, बहुत सारे हजरात हैं, और आप हजरात भी जरा साहब तो मोबाइल ये बीमारी है कि लोग इसी में पड़े रहते हैं, सुनते कम है, इसमें ज्यादा करते हैं, ये एक बीमारी है। तो अब लोग चले हैं तो दूसरी किताबों का हवाला देते हैं, और अगर वो लोग भी हों जो ऐसे लोगों को मदऊ करते हैं, जरा वो भी सुन लें। दूसरी किताबों का हवाला, दूसरी किताबों का पढ़ना, दूसरे मजहबों का पढ़ना वगैरह वगैरह वगैरह, एक बात याद रख लीजिए, हिदायत के लिए कुरान काफी। बेशक 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 हिदायत के लिए कुरान काफी। किसी किताब की जरूरत कुरान मुकद्दस के सबूत के लिए नहीं है, नबी की नबूवत के लिए किसी और किताब की जरूरत नहीं है। लोग बेवकूफ बनाते हैं, ढकोसला बना के लाते हैं, इधर उधर वो बन के आते हैं लोगों को फुसलाने के लिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं। अल्लाह का कलाम तमाम कलामों पर भारी है। एक शेर में कहूंगा कि कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुश्दो हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो सबसे मुकद्दस किताब कौन सी हुई है? कुरान है ना। बाइबल लाता, फलाना, क्या जरूरत, जब तौरात जबूर इंजील की जरूरत नहीं पड़ी, जब कुरान आया सबकी रहबरी करता है, तो अब भला बताओ। अब हम आगे नहीं कहेंगे, आजकल के नौजवान बड़े शौकीन हैं, अता पता कुछ है नहीं, गुस्ल का तरीका नहीं पता, कितनी चीजों से वजू टूटता नहीं पता, कब नमाज फासिद हो गई नहीं पता, कहते फलाना मौलाना बहुत गजब का। आपको नदवा में आलिम नहीं मिलता है, आपको शाही मुरादाबाद में आलिम नहीं मिलता, दारुल देवबंद जो उम्मुल मदारिस है, जो पूरी दुनिया में इल्म का मरकज है, दारुल देवबंद, वहां से आपको नहीं मिलता है। नौजवान बोल देते हैं इधर से टांगे कटी, उधर से कटी, इधर से कपड़ा गायब, उधर से गायब। अब मैं इसके मौके क्या बताऊं, ये जो कपड़ा घुटनों से कमर तक है, इतना हिस्सा छुपाना वाजिब है, इसके ऊपर भी काट लेते हैं। पूछ लो उलमा से नमाज होगी कि नहीं, आप जानो, आपका काम जाने। इतना नहीं पता है, कहते हैं फलाना मौलाना बहुत गजब का। उसने तो पूरी रामायण पढ़ ली, कहते उसने तो हनुमान चाहता है, पागल क्या बताएं, अकल की दुश्मनी है ये। सबसे मुकद्दस तो कुरान मुकद्दस है, सबसे मुकद्दस किताब तो वो है, अल्लाह का कलाम है। कुरान मुकद्दस अल्लाह का कलाम भी है, किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। सारी किताबें मिट चुकी हैं, लेकिन अल्लाह के कलाम पर आज तक कोई फर्क इसलिए नहीं आया, ये कलामुल्लाह भी है, अल्लाह का कलाम भी है, और किताबुल्लाह भी है।
बोलो करेंगे इंशाल्लाह। तो कुरान असल किताब है। अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए नबी आप कह दीजिए, आप फरमा दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं या नहीं। अल्लाह ने खुद ही इरशाद फरमाया ला यस्तवून, दोनों बराबर। वला ज़ुलुमातु वलन नूर, अल्लाह ने इरशाद फरमाया अंधेरा और उजाला, जुल्मत और रोशनी दोनों बराबर। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया आंख वाला और अंधा दोनों बराबर नहीं हो सकते। आमा वल बसीर, यानी अंधा और आंख वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये अल्लाह ने इरशाद फरमाया। तो कुरान मुक़द्दस ही हिदायत के लिए काफी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जिसमें शक व शुबहा की कोई गुंजाइश। कुरान की अजमत दिल में उतारी। और बातें आएंगी इंशाअल्लाह करूंगा, पहले आप ये बात समझो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का बचपना था, जामिया निजामिया बगदाद में पढ़ा करते थे। दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज जामिया निजामिया बगदाद उस दौर में था। अब तो पूरी दुनिया का इल्मी मरकज बेतकल्लुफ दारुल उलूम देवबंद है। मैं कैसे कह दूं, क्या कहूं। अल्लामा अली रजा मिस्री मिस्र से आए, जामिया अजहर मिस्र से। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे, दरस दे रहे थे। 3 दिन अल्लामा अली रजा मिस्री दारुल देवबंद के दारुल हदीस में तलबा के साथ बैठे सुनते रहे। और उन्होंने तीसरे दिन कहा कि हजरत मैं सुनता था यहाँ से इल्म का चश्मा जारी है, आज समझ में आया पूरी दुनिया को फैज यहीं से मिलता है। इस पर दारुल में तराना कहा गया था। 42 साल पहले 2 शेर कहूंगा तराना के कि खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ, खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ, तारीख़ मुरतब करती है दीवानों की रूदाद यहाँ, तारीख़ मुरतब करती है दीवानों की रूदाद यहाँ। और एक शेर बड़ा अच्छा है कि हर बूंद है जिसकी अमृत जल, ये बादल ऐसा बादल है, हर बूंद है जिसकी अमृत जल, ये बादल ऐसा बादल है। और 100 सागर जिससे भर जाए, ये छागल ऐसा छागल है, 100 सागर जिससे भर जाए, ये छागल ऐसा छागल है। जी जाता एक शेर और को इसका कि कोहसार यहाँ तब जाते हैं, कोहसार फारसी में कहते हैं पहाड़ों को, कि कोहसार यहाँ तब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। और काख कहते हैं महल को, खाक कहते हैं मिट्टी को, काख कहते हैं फारसी में महल को। सुनिएगा जरा, आज तो वैसे कहा फलाने ने पढ़ दिया मदीना की बात कर दी, सुभान अल्लाह, और समझे कुछ उधार है। एक जगह लोग मुशायरा में गए तो कहा कुछ समझ में आया, कहा हाँ इरशाद इरशाद समझ में आया। जैसे सुनने वाले वैसे वो आगे नहीं कहेंगे। और जितने यूट्यूब पर घूमते एक और आदमी कोई शायर 10 में कहीं एक ही मिलेगा। अब हम इस पे भी नहीं कहेंगे कुछ वरना बुरा मान जाओगे, लेकिन इसीलिए वालिद साहब हमको डांटते थे कि बहुत सच ना कहा करो, कभी कभी बोल हो जाया करो। ये हमारी अपनी मजबूरी है, अल्लाह को मुरुन हक बात कड़वी है। तो कोहसार यहाँ तब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं, कोहसार यहाँ तब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं, इसका
काख फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। इस काख फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। वो है मादरे इल्मी दारुल उलूम देवबंद, उम्मुल मदारिस, तमाम मदरसों की माँ दारुल उलूम। अपनी मर्जी से नहीं रखा। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। हजरत नानवी रहमतुल्लाह अलैह हुज्जतुल इस्लाम से फरमाया, हुज्जतुल्लाहि अलल अर्ज़, जब तक जिंदा रहे अल्लाह की हुज्जत और दलील जमीन के ऊपर, और जब दुनिया से रुखसत हुए कब्र में गए हुज्जतुल्लाहि फिल अर्ज़ हो गए। हजरत अल्लामा कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में आका तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कासिम यहाँ मदरसे की बुनियाद रख दो। किसने कहा? ज़बाने रिसालत ने कहा है। अल्लाह सही समझ की तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो भाई, तो असल इल्म कौन सा भैया? अरे पीछे तक बोल दो ना, कहते बहुत गजब, पूरी बॉबीले उठा पड़ दी, पूरा बैठे उठा पूरा हनुमान में तुमको क्या मिलेगा इससे? आपको तो जो मुफ्ती साहब ने कहा सुन्नतों से मिलेगा, किताबुल्लाह से मिलेगा, सुन्नते रसूलुल्लाह से मिलेगा, उधर क्या मिलेगा? अल्लाह सही समझ आता कहते बहुत गजब, और आता पता अपने बारे में नहीं है। तो कटा है पूरा, इधरों काटे पड़ा, आता पता नहीं है कि नमाज होगी या घुटनों से कमर तक छुपाना वाजिब है। अगर ये हिस्सा खुले और नमाज में इतनी देर तक खुला रहे, एक बार सुभान रब्बियल अज़ीम या सुभान रब्बियल आला कहे तो नहीं नमाज टूटेगी। 3 बार कहने के मिक़दार तक खुला रहा तो नमाज ही टूट जाएगी। और पूरा पहले से काटे पड़ा हो तो मैं कहता पढ़ाना बड़ा गजब है। हमें कुछ सीखो तो पहले उलमा से ताल्लुक रखो, उलमाए हक से ताल्लुक रखो ना। आपके यहाँ तो इदारे महमूदिया है, इतना बड़ा मदरसा, जाओ बड़े बड़े उलमा है। और याद रखिए बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना इमाम अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप कई जिलों में इतना बड़ा मुनाजिर नहीं पाते जितने बड़े मुनाजिर थे हजरत मौलाना इमाम अली साहब दानिश रहमतुल्लाह अलैह। समझे नहीं समझे आप? बस अल्लाह सही समझ अता फरमाए। तो मैं कह रहा था जामिया निजामिया बगदाद में पढ़ते थे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह। हजरत बड़ी गुर्बत में जिंदगी बसर करते चले आए। कभी पेट भर खाना नहीं मिला करता था। और भैया आपको सुनो जरा, यहाँ तलबा भी है, बहुत पेट भर खाओगे तो इल्म की जगह कहाँ रखोगे? और एक दो की बात नहीं करता हूँ। हजरत अल्लामा कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांगवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत कारी इसहाक साहब के दौरे के उस्ताद थे, हजरत पेट भर खाना नहीं खाया करते थे, पानी भरते थे, उसके बदले कुछ रोटियां मिलती थी। सबसे पहले फतेहपुर आए, जो कानपुर से 82 किलोमीटर दूरी पर। समझ लो भाई, हजरत पेट भर खाना नहीं खाते थे। हजरत नानवी रहमतुल्लाह अलैह, और मैंने जिनका जिक्र किया हजरत रहमतुल्लाह अलैह, कौन? हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लामा थे। इनके इल्मी मकाम को देखा जाए तो सर से टोपी नीचे आ जाए, इतने बड़े अल्लामा थे। कौन? हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह। आवाज हो बेटा, तुम आवाज का जिम्मेदार नहीं हो, कम हो ज्यादा हो इसका आप जिम्मेदार नहीं। 3 बार बता चुका हूं, चौथी बार नहीं बताऊंगा। 3 बार में सब कुछ है। हमारे यहाँ जो सही मसला है 3 बार में तलाक हो जाते, फिर उसमें कोई गुंजाइश। और बाजों क्या, एक बार बैठ करके एक ही जगह बैठ के 100 बार कह दो तब भी एक कर मानी जाती। और मैं कहूँगा कि उस पर कोई इसका मौका नहीं है। एक मरतबे हजरत मौलाना उसामा साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती शकील साहब रहमतुल्लाह अलैह, और हजरत मौलाना अफजलुर रहमान साहब शेखुल हदीस दामद बरकात हरदोई वाले, तो रसूलाबाद एक जगह है जिला उन्नाव में, और कारी आजाद साहब ने प्रोग्राम करवाया था बहुत पहले रद्द गैर मुक़ल्लिदियत पर। तो आखिर में इस चीज को रखा गया। तो बयान तो सब हो चुके थे, कहाँ से? तो हमने कहा भाई एक ही बात मैंने कही मौलाना, मैंने कहा अगर किसी आदमी को एक जगह बिठाकर 10 लाठी मारो, पीठ ऊपर हो जाए, कितनी मानोगे? तो कहा 10। तो हमने कहा तलाक नहीं समझ में आया।
कहा गया। मैंने कहा एक जगह बैठकर कोई 10 पारे तिलावत कर ले, कितने मानोगे? कहा 10 है। मैंने कहा एक जगह पर कोई 18 रकात नफले पढ़ ले, कितनी मानोगे? कहा 18। तो हमने कहा तलाक मेरी समझ में आया, बात खत्म हो गई। क्या बात है, क्या बात है। तो अर्ज कर रहा था कि 3 बार दखल लगता है। कोई वजू में 4 बार हाथों को धुल ले तो उसका वजू मकरूह हो जाएगा, पानी का इसराफ होगा, पानी ज्यादा हो जाएगा। 3 ही बार सुन्नत है। और एक बात बहुत ज़हन में आ गई तो उलमा की मौजूदगी में अर्ज कर दूं, हमारे यहाँ हनफी मसलक में यानी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फिक़ह के इमाम थे, जो मसला कुरान में हदीस में सराहत के साथ ना पाया जाए, खुल्ला खुल्ला ना पाया जाए, उन दोनों की रोशनी में जो पाया जाता है उसको कहते हैं फिक़ह। तो सबसे बड़े इमाम थे फिक़ह के इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। एक बात सिर्फ बताऊंगा, हमारे यहाँ हनफी मसलक में अमले कसीर नमाज में पाया जाए तो नमाज फासिद हो जाएगी, टूट जाएगी। अमले कसीर यानी ज्यादा अमल, एक ही रुकन में 3 बार एक ही अमल मुसलसल पै बपै पेश हो जाए, उस अमल को अमले कसीर बोलते हैं, उससे नमाज टूटती। एक बात मैंने अर्ज कर दी, मिसाल के तौर पर मोबाइल जेब में रखा हुआ, एक बार घंटी आई, आपने कहीं किसी बटन को दबा दिया, दोबारा फिर बेल बजी, फिर आपने घंटी को दबाया, दोबारा फिर बेल बजी, अब आप दोबारा घंटी को दबा देंगे किसी बटन को, नमाज फौरन फासिद हो जाएगी। एक रुकन में 3 बार कोई अमल मुसलसल पेश हो जाए, इसको अमले कसीर कहते हैं। आगे कोई बात नहीं करूंगा, इससे ज्यादा मौका नहीं है। तो अर्ज कर रहा था, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जामिया निज़ाम यहाँ बगदाद में पढ़ाते थे, भूखे रहा करते थे, बनिया शरबत बेचा करता था और शाम के वक्त जो शरबत बचता नाली में फेंक कर चला जाया करता। एक दिन इमाम साहब कहने लगे, ये बनिया तो शरबत नाली में डाल के चला जाता है, मैं जरा भूखा प्यासा रहता हूँ, शरबत ही से कुछ मदद मिल जाया करे तो मुझे दे दिया कर। तो बनिया ने इमाम साहब को धक्का दे दिया कि नहीं, और शरबत नाली में फेंक के चला गया। और भैया कोई ऐसा आदमी तो नाराज न हो जाए, बनिया बड़ा चालाक होता है। जब आप जीरा खरीदने जाओगे और लाल मिर्च खड़ी वाली खरीदने जाओगे तो भरे, जब आप 100 ग्राम मांगोगे तो 1 पाव भर देगा, ऊपर से बड़ी बड़ी मिर्च उठा लेगा, जब डंठल बचेगा ना टूटा टाटा वही आप समझोगे बहुत सखी आदमी, सखी वकील बहुत ही चकड़ है वो, ऊपर से उठाता जाएगा नीचे वाला कूड़ा भर करके। अरे बोलो है कि नहीं, ऐसे करता है, थोड़ा चालाक होता है। और एक साहब बोले, तो मैंने कहा भाई जब आप गोश्त बेचते हैं तो हम लोग को अंदाजा होता भाई 1 किलो हो चुका होता, आप 1 किलो की जगह 1.25 किलो 1.5 किलो क्यों रख देते हो तराजू के पल्ले में? तो कहा आप नहीं समझ पाओगे। तो उनका समझा दो ना, कोई बहुत बारीक बात हो। कहा सुनो, कुछ तो हमारी मर्जी की बोटियां होंगी और कुछ खरीदार की मर्जी के मुताबिक बोटियां होंगी। हम अपनी मर्जी वाली भर देते हैं और जब उसको घटाना होता है तो उसकी मर्जी वाली उठा उठा के नीचे डालते हैं। ले जाओ हड्डी नापो घर में। तो बड़ा चक्कर होता है। अरे बोलो है कि नहीं? तो भैया बनिया बड़ा चालाक होता है। बनिया ने इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को धक्का दे दिया, पानी और शरबत को नाली में डाल के चला गया। हजरत घड़ी ने देखे, हम घड़ी देख चुके हैं, 12 बजे हम छोड़ देंगे। कोई घड़ी ने देखे, हमारे पास घड़ी है और हम ठीक इंशाल्लाह 12 बजे छोड़ देंगे। नमाज में भी लोग बहुत थकते हैं, जब मस्जिद में जाते हैं तो घड़ी बराबर देखते हैं, कहीं ज्यादा ना हो जाए, कहीं कायद में फंस जाए। मस्जिद में जब तक रहोगे सवाब ही मिलेगा, चाहे पढ़ो चाहे इसमें बैठे रहो। अरे बोलो है कि नहीं? तो लोग बहुत ऐन वक्त पे जाएंगे और शहर में तो लोग बड़े वक्त के पाबंद होते हैं, बहुत ऐन वक्त पे जाएंगे और इतनी जल्दी भागेंगे कि आप पता नहीं लगा पाओगे किसकी चप्पल उठा ले गए। बहुत जल्दी भागते हैं और उनका पैर बता नहीं पाएगा कौन चप्पल पुरानी है कौन नहीं। जब उनका पैर पड़ेगा तो नई चप्पल में पड़ेगा। खैर वो बात नहीं।
10 रकात 10 सुन्नतें ऐसी हैं जिसके बदले अल्लाह के हबीब ने खुशखबरी दी है। 10 सुन्नतें, वो 10 रकातें कौन, 12 रकातें, वो 12 कौन सी हैं? जो आदमी बिला वजह छोड़ दे गुनहगार हो जाएगा। वो 12 कौन सी हैं? जब सुन्नत की बात आई तो 1 मिनट में ये बात अर्ज कर दूंगा। वो 12 रकातें कौन सी हैं जिसके लिए ताकीद की गई है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पाबंदी फरमाते थे, सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन उसकी हमेशा पाबंदी करते थे। वो 12 सुन्नतें कौन सी हैं? दो तो फजर से पहले की सुन्नतें हैं। ये इतनी अहम सुन्नतें हैं कि अगर छूट जाए तो जब आप फर्ज पढ़ लीजिए उसके बाद इनको सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद पढ़िए, और 20 के बाद से लगाकर जब तक जलाल का वक्त रहता उससे पहले पहले आप उन सुन्नतों को पढ़ सकते हैं। और अगर जलाल का वक्त यानी सूरज जमाल पर आ जाए, सूरज घूम जाए, जोहर का वक्त शुरू हो जाए, अब वो सुन्नत माफ हो जाएगी, अब आप नहीं पढ़ेंगे। लेकिन तब तक इसकी गुंजाइश इतनी अहम सुन्नत है। कौन सी? फजर से 2 रकात पहले वाली सुन्नत, और 4 सुन्नतें जोहर से पहले की, ये सुन्नतें मुक्कदा कहलाती हैं। 2 सुन्नतें बाद के ये भी जरूरी है, और 2 सुन्नतें मगरिब के बाद की हैं, इसकी भी बराबर पाबंदी की गई है, और 2 रकातें इशा के फर्ज के बाद हैं। ये कुल मिला के 12 सुन्नतें हो गई हैं, इसकी ताकीद की गई है। अल्लाह सही सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अर्ज कर रहा था, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को धक्का दे के बनिया चला गया। बहुत मुख्तसर कर, वरना वक्त हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद बनिया की लड़की शादी के लायक हो गई, और बनिया मालदार बहुत था भैया, और बहुत ज्यादा आदमी जब मालदार हो जाता तो कंजूसी बिल्कुल ठेका ले लेती, सोचता अवरो हो जाए, अवरो हो जाए। इसके पास तो लगा भैया मेहमान है, खिलाते, जो होगा कल देखा जाएगा। और जब बहुत दौलत है कहते समेटो रखो न कहीं घट न जाए। बनिया बड़ा मालदार था, लड़की शादी के लायक हो गई। बनिया ने कहा था, अगर मैं अपनी बेटी को सबसे ज्यादा कीमती सामान जहेज में न दूं, मेरी बीवी को 3 तलाक़ें हो जाएं। जब 3 दिन बाकी रहे, बनिया ने पता लगाना शुरू किया। पता चला जिसने जितना सामान इसने इकट्ठा किया है, सारा सामान पहले ही से दिया जा चुका। बनिया परेशान हो गया, पता लगा के इधर उधर बहुत ज्यादा परेशान हुआ। जब 3 ही दिन शादी के रह गए तो बीवी से कहा, क्या होना चाहिए? मैंने पता तो बहुत लगा है, जितना सामान मैंने ढेर कर दिया है, ये सारा सामान पहले ही से दिया जा चुका है, मामला तलाक का आएगा। तो तलाक क्या रही है? कहा जाओ उलमा से मसला मालूम कर लो। तो मुफ्तियान निजाम के पास जाओ, बगदाद के बड़े बड़े मुफ्तियों के पास वो गया, बनिया गया, मसला मालूम किया, सबने जवाब दे दिया। कहा एक ही आदमी नौजवान आलिम दीन गजाली नाम का, इमाम गजाली के पास जाओ, अगर वो मसले का हल बयान कर देंगे तो है, वरना किसी और के बस की बात नहीं है। बनिया आया इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के पास, हजरत मसला बता दीजिए, मैंने ऐसा ऐसा कहा था, सबसे ज्यादा कीमती सामान अपनी बेटी को जहेज में न दे पाऊं, मेरी बीवी को 3 तलाक़ें हो जाएं। हजरत ने फरमाया, बनिया सुन, इस बात को बताने के लिए तुझे 1 खच्चर रुपया देना पड़ेगा, तब मसले का हल होगा। 1 खच्चर के माने पूरी बोरी में भर लिया जाए रुपये, तब सोने चांदी के सिक्के चलते थे, आज जितना पैसा तो कहा 1 बोरी यानी 1 जानवर खच्चर बोझल हो जाओ, उसके बोझ के बराबर तुझे रुपया देना पड़ेगा, तब मैं मसले का हल बताऊंगा। बनिया ने कहा, ये पैसे तो हजरत ज्यादा हो जाएंगे, मशवरा के बाद मैं कल बताऊंगा। बनिया घर गया, बीवी से कहा कि हजरत ने ये कहा। तो कहा सुनो, सौदा भी सस्ता है, तलाक हो जाएगी, मुंह नहीं दिखा पाओगे, 1 खच्चर रुपया दे दो, सौदा ये सस्ता है। बनिया आया दूसरे दिन का, हजरत आप मसला बता दीजिए, 1 खच्चर रुपया देने को तैयार। हजरत ने कहा सुनो 2। कहा क्या मतलब? कहा 2 खच्चर। कहा हजरत आपने कल 1 ही कहा था। कहा सुन, बहुत चकड़ न बन, कल पहला दिन था, दूसरा दिन है, 2 खच्चर देने पड़ेंगे। बनिया को पैसे ज्यादा लगेगा, हजरत मैं कल आऊंगा, मशवरा के बाद बताऊंगा। बनिया घर गया, बीवी से मशवरा किया, बीवी ने कहा सुनो अब भी सस्ता है मामला, हल करवा लो, वरना की मुंह दिखाने के लायक। बनिया तीसरे दिन आया, कहा हजरत मसला बता दीजिए, मैं 2 खच्चर रुपया देने को तैयार।
حضرت نے کہا 3. کہا حضرت آپ کو پڑھاتے جاتے ہیں، آپ نے 2 کی بات کہا سنو. کل دوسرا دن تھا یا تیسرا دن؟ بنیا نے کہا حضرت میں تیار ہوں، آپ مسئلہ بتا دیجئے. شمع رسالت کے پروانوں، ایمان والوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم دنیاوی تعلیم بڑی بڑی ڈگریاں دلوا کر کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑے کمال کو پہنچا دیا، بڑے کمال کو پہنچے، اور بیٹی بہت کمال کو پہنچ گئی. دین کی تعلیم نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ نماز اور روزے اس کی معلومات نہیں ہے. کیا جواب دو گے؟ اللہ کیا کچھ پتا چلا معلومات نہیں ہے. تمہارا دیا ہوا پیسہ ختم ہو جائے گا، دی ہوئی دولت ختم ہو جائے گی، دیا ہوا سامان ختم ہو جائے گا، کہیں آگ لگ گئی سامان ہی جل جائے گا، لڑکی ختم ہو گئی سامان وہ بے ایمان لوٹ لے گا. جب پہلے سے اس نے رعایت نہیں کی تو مرنے کے بعد کہاں واپس کر دے گا؟ آپ بتاؤ ذرا. یہ دی ہوئی دولت ختم ہو جائے گی، سامان چلا جائے گا، لیکن قرآن والی دولت جو سینے میں جا چکی ہے اس کو کوئی چھین ہی نہیں سکتا. اس کو کوئی چھین پائے گا نہیں. میں تو کہا کرتا ہوں مثال میں اپنے بیان کے اندر، دنیا کی بڑی بڑی کتابیں اگر کوئی اسکول اور کالج کو لے جائے گا، پیٹھ پر اس کا بوجھ لد کے جائے گا، کتابیں پیٹھ پر لد کے جائیں گی، یعنی کتابیں پیچھے، چلنے والا آگے. آگے وہ کتاب نہیں جائے گی، کتاب پیچھے ہے، چلنے والا آگے ہے، اس کا سینہ آگے، چہرہ آگے ہے، کتابیں پیچھے لگی ہوئی ہے. اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ یہ سارا علم ادھر ہی چھوٹ جائے گا، ادھر ہی جاؤ گے. لیکن ذرا قرآن کی بات بتا دو، شمع رسالت کے پروانوں. جب قرآن کی بات آئے گی، عورتیں بولیں گی یہ تو بڑی والی کتاب. کہتے ہیں بڑی کتاب ہے، واقعی بڑی کتاب ہے. بیچاری اپنی زبان میں بولتی ہیں کہ بڑی کتاب سے مانے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کو سینے سے لگا کر پہلے وضو کر کے اور اس کو چوم کر سینے سے لگا کر تب پڑھنے والا چلتا ہے، بچے جاتے ہیں. اس بات کی علامت ہے یہ کتاب اللہ کی کتاب دنیا میں رہبری کرے گی، قبر میں رہبری کرے گی، پل صراط پر رہبری کرے گی، میدان قیامت میں بھی قرآن مجید لوگوں کی شفاعت کروا کے جنت میں داخل کروائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اندر تشریف لے گئے، کلام اللہ شریف اٹھا کے لائے، کہا بنیا سن، یہ اللہ کا کلام ہے، کتاب ہے، اس کتاب کو لے لے. جب سارا سامان دینے لگنا تو کلام اللہ شریف کو بھی ہدیہ میں دے دینا. اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ دونوں جہان کی دولت مل کر اس کا مقابلہ. بے شک بے شک بے شک. ارے بولو بھائی، قدر کرو گے انشاءاللہ. تو 40 چکر نہ پڑھنا، پڑھ گئے ہو لیکن اب دوبارہ احتیاط کرنا. ہمیشہ علماء ربانیین کو، خالص علماء کو جو مخلص ہیں، جیسے قاری صاحب مفتی وغیرہ اور بڑے بڑے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو بلا کر ہمیشہ دین کی بات سنا کرو. ادھر ادھر کی باتیں سننے سے ملے گا کوئی بڑا غضب رہا، لیکن ہاتھ کچھ لگے گا نا ادھارے پھر لوٹ جاؤ گے. اللہ صحیح عمل کی توفیق. ارے بھیا برا تو نہیں لگ رہا ہے، لیکن ہاں یہی ہے. تو میں نے شعر ابھی کہا تھا یہ کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. حضرت نے بنیا کو قرآن مقدس دے دیا. لوگ کہتے ہیں قرآن جلانے سے جل گیا، نسخہ جل گیا. میں نے کہا کس نے بتایا کلام جلا؟ میں جلا ہوتا تو جل چکا ہوتا، موجود نہ ہوتا. آج بھی اللہ کا کلام موجود ہے. کاغذ جلا ہے، نسخہ جلا ہے، اللہ کا کلام تو آج موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گا. کلام نہ جلانے سے جلے گا، نہ مٹانے سے مٹے گا. نسخہ جل جائے گا، کاغذ ہے، کوئی بھی کاغذ جلا دو، کچھ بھی لکھ دو تو کاغذ تو جل ہی جائے گا. اللہ کا کلام جلنے والا، مٹنے والا نہیں ہے. تو طے کرو ایمان والو، قرآن مقدس کی تعلیم اپنی بچوں کو اور بچیوں کو اس کی جگہ کہاں گھر گھر کروا پاؤ گے؟ آسان نہیں ہے. اس کے لیے مدرسہ ہوتا ہے. یہ مدارس دین کی چھاونیاں ہیں. کیا ہے یہ؟ چھاونیاں. یہ تعلیم گاہیں دین کی چھاونیاں ہیں، یہیں سے ملے گا. ایک آدمی بیٹھے گا، مدرس بیٹھے گا اور وہ تعلیم دے گا.
मुदर्रिस का बड़ा मुकाम होता है। और मैं क्या बताऊं, बात तो बार बार आती है, इसलिए मुझे मजबूरन कहना पड़ता है। इधर उधर का खर्चा बहुत करते हैं, इनको दिया उनको दिया, ये किया वो किया, ताकि लोग समझे बहुत ज्यादा हाई फाई आदमी, इधर उधर बहुत दिया। लेकिन जब मुदर्रिस को देने की बारी है तो कहते हैं उनको 5,000 दे दो, 3,000 इमामत के, 4,000 इधर बढ़ाने के 7,000 बस। कहते हैं बहुत है इतना। और 1 घंटे वाले को दिया बहुत, और इधर जो 24 घंटे लगाए कहते हैं 7,000 बहुत है, 900 ये कम नहीं। मैं मुदर्रिस नहीं हूँ, कभी मौका था बढ़ा देता था। मदरसे थोड़ी जिम्मेदारी है, ईदगाह की इमामत का मसला है, 32 साल हो गए, सन 1992 से ये 2 मसले सामने हैं, और बाकी जरा ये सफर होता है तो इसलिए फुर्सत नहीं होती। लेकिन मैं अक्सर जगहों में ये बातें अर्ज कर देता हूँ कि 7-5 की लाठी, 1 का बोझ, 10 खेत तब 1 खलियान। क्या मतलब? आप मस्जिद में एक गोला रख लो जिसमें पैसा डलता है, उसमें रोजाना 5 रुपया डालते जाओ, हर रोज 5 रुपया एक में डालो, दूसरे में भी 5 डालते जाओ, एक मकतब और मदरसे के लिए खास कर लो और एक मस्जिद के लिए खास कर लो, 2 अलग अलग रखे, दोनों में रोजाना 5-5 रुपए। बच्चे 5 से कम नहीं लेते, अब तो 10 लेने लगे हैं। 5 दे दो तो नाली में फेंक के चले जाएंगे, गुस्सा हो जाओ। 2 अगर दोगे तो न जाने कितनी दूर फेंक देते, अरे कोई नहीं फेंकते। तो 10-5 तो रोजाना ऐसे ही चले जाते हैं, बच्चे ले जाते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं, न जाने क्या क्या होता है। 1-8 रुपया गिर जाए तो आदमी उठाने की जहमत नहीं करता, अरे कौन उठाए 1 रुपया के बाद, अब 10 गिर गए इसके लिए हम गाड़ी रोके उठाएं। तो 10-5 की कोई हैसियत इस दौर में नहीं है ईमान वालों। अगर ये 5-5 दोनों मिला के 10 रुपए रोजाना डालते रहे तो 1 महीना पूरा होने के बाद कितना हो जाएगा? 300 हो जाएंगे। 150 इधर और 150, पता चलेगा आपको? नहीं पता चलेगा। मुझे याद है 40 साल पीछे की बात, बचपना था, मैं पढ़ता था, चुटकी चलती थी। 40 साल की बात तकरीबन हो गई, इसलिए कि 40 साल का अरसा हो गया। मैं मदरसा फुरकानिया दाखिले के लिए गया था, 40वां साल, उससे पहले की बात है ये। तो चुटकी चलती थी, जिन जिन के यहाँ खाना मले चावल पकने जा रहा तो उस चावल में से थोड़ा निकाल के रख दिया अलग। रखते रखते 1 हफ्ता हो गया, फिर जुमेरात के दिन आते थे बच्चे वसूली के लिए, जो 1 हफ्ते में जमा हुआ। मान लीजिए 1 किलो चावल पकना तो 100 ग्राम निकाल के अलग रख दिया, 1 किलो आटा पकना तो 100 ग्राम आटा निकाल के दूसरे बर्तन में रख दिया। 1 हफ्ता पूरा हुआ, उसके बाद जब बच्चा है वसूली के लिए, दोनों उठा के, अब यहाँ हो न हो, कहीं हो न हो, लेकिन पहले हमने देखा हमारे इलाके में चलता था, उसको चुटकी बोलते थे, चलता था। तो पता चला 50 घरों से जमा होते होते अच्छा खासा ढेर हो गया। अगर कुछ न हो तो उसी से इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाह, मुदर्रिस की तनख्वाह। और कुछ पता चला नहीं, अल्लाह के नाम पर जब पहले से निकाला जाए बरकत हो जाएगी। जब 1 किलो आटा लगने वाला अल्लाह के नाम पर पहले से निकाल दिया जाएगा, बरकत हो जाएगी। 1 किलो आटा, 1 किलो चावल में अगर 8 लोग खाते थे और अल्लाह के नाम पर पहले से निकालता, उसकी बरकत होगी। 20 लोग खाएंगे, घटेगा तभी नहीं। अल्लाह को दे दो फिर घट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह बड़ा गयूर है, बड़ी गैरत वाला है, जो उसके साथ करे अल्लाह बहुत याद रखता। अल्लाह लेता नहीं, अल्लाह की तो देने की आदत है, लेने की आदत नहीं। तो तय करो, 10-10 रुपए रोजाना जमा कर देंगे। एक इधर डाला, दूसरा उधर डाला, 10-10 रुपए रोजाना जमा कर लिया। और जमा करते करते अगर 10, 20, 30, 50 घर हो गए, हर घर से 300 रुपया महीना, और पता को चलेगा नहीं। जब 10-5 यूं ही चला जाता, पता चलेगा नहीं। इकट्ठा कहो 300 महीने दीजिए तो आदमी को घरानी गुजरे, बहुत हम नहीं दे पाएंगे, अरे बोलो है कि नहीं। और 10-10, 5-5 करते रहे, हर महीने में 300 हो जाएंगे, सब जमा हो गया। इमाम की तनख्वाह बढ़ा दी, मुदर्रिस की तनख्वाह बढ़ा दी, मुअज्जिन की तनख्वाह बढ़ा दी, उसका भी काम हो जाएगा, इधर भी बरकत हो जाएगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो तय करो ईमान वालों। तो अर्ज कर रहा था, दीन की तालीम, ये तालीम गाहें मदारिस हुआ करते हैं, दीन की छावनियां हैं, कदर कीजिए दोस्तों वहां। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे नबी आप कह दीजिए कि जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर। अल्लाह ने फरमाया बताओ, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला यस्तवून, बराबर हो ही नहीं सकते।
کہ بے علم تما خدا را شناخت. علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں بغیر علم کے اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا. ایک بات تو یہ ہو گئی. بولو کریں گے ایسا؟ بچوں کو دین کی تعلیم سب سے پہلے اللہ کا نام اور اللہ کا کلام پڑھایا جائے گا, اللہ کی کتاب پڑھائی جائے گی. سر بولو کریں گے انشاءاللہ. اور یہ تعلیم گھر سے ہوتی ہے. ماں کا گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے. ماں کا گود, ہمارا لڑکا ساتھ میں آیا, ناظرہ مکمل ہے مدرسے کی تعلیم, یہ گھر کی اس کی ماں کی تعلیم ہے. 7 بچہ اور ان میں سے 5 کا قرآن یہ بھی ناظرہ گھر میں. اور جتنے بچے جب وہ بولنا شروع کرتے تو سب سے پہلے ان کو کلمے ہی کی بات کی جاتی ہے. اللہ کا فضل ہے. تو یہ ماں کا گود بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہوتا ہے. والی کندھار کے بادشاہ نے سنا لڑکا جنگ سے واپس ہار کے آ رہا, پیٹ پھیر کے آ رہا. بیوی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, کہا دوسری خبر کا انتظار کرو. جب بیوی نے بہت اطمینان سے کہا, جب دوسری خبر آئی تو پتا چلا ہار کے نہیں جیت کے آ رہا ہے. تو والی کندھار نے بیوی سے کہا بیوی تجھے کیسے پتا ہوا کہ جنگ سے پیٹ پھیر کے نہیں آئے گا؟ کہا کیسے آتا, جب میں نے بچے کو دودھ پلایا, پہلے وضو کیا تب دودھ پلایا. باوضو دودھ پلانے والی ماں, باوضو دودھ پینے والا بچہ کبھی پیٹ پھیر کر نہیں جایا کرتا. اللہ ہماری ماں بہنوں کو سمجھ عطا فرمائے. یہ تو اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں, موبائل میں بچوں کو پھنسا دیتے ہیں. کچھ کام کرنا ہوا نا, وہ موبائل چھپر والا چلا نا, پورا عذابے تو ہے, وہ پکڑا دیا بیٹا یہ لے جاؤ. اب کان بھی متاثر ہے, آنکھیں بھی متاثر ہیں, دل بھی متاثر ہے, سارا اعضاء سب کمزور ہوئے جا رہے ہیں. اور پتہ چلا 20 سال کی عمر میں جواب دینے لگے, اور تمام کمزوریاں. اس سے بچنا پڑے گا. اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے موبائل دے دیتی. ارے بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ اس سے بچیے. تو عرض کر رہا تھا کہ ماں کا گود پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا طلب کرنا فرض. سب کو عالم بنا دو, مفتی بنا دو نہیں ضروری ہے. کتنا جسے دین کی معلومات, حرام و حلال کی تمیز اور عبادات, یہ ساری چیزیں اتنی معلومات ہو سکے اتنا فرض ہے. سب کو عالم بنا دو نہیں ضروری, سب کو حافظ بنا دو ضروری نہیں ہے. لیکن کرو گے ایسا تو ثواب بے انتہا ملے گا. لیکن ذمہ داری اسی پر ختم ہو جاتی ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. تو حضرات گرامی, میں نے 2 باتیں عرض کی, اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یہ مجلسیں بڑی قیمتی ہوا کرتی ہیں, اس میں دین کی باتیں ہوا کرتی ہیں, اور عمل کی نیت سے سنا کیجئے, دل میں بسا لیجئے, فائدہ تبھی ہوگا. تو یہ ہمارے احباب نے جو بیان فرمایا 3 علماء اکرام نے, اس کو آپ ذہن میں رکھے رہیے گا. شادی کے تعلق سے حضرت مولانا مفتی حسین صاحب دامت برکاتہم نے اور حضرت قاضی صاحب نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ شادی میں خرافات ادھر ادھر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. ایک بات آپ یاد رکھیے, اصل طریقہ جو مختصر سا سنت کا یہ ہے کہ آج کل اس دور میں لوگ لڑکی والوں کو ٹائم دیتے ہیں کہ بھائی صاحب ہونے والے سمجھی جی جتنا چاہو ٹائم آپ 2 4 6 10 مہینے کا لے لو, ہمیں کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں, ہم خوشی سے آپ کو ٹائم. ارے بولو, بولتے نہیں بولتے؟ ارے بھیا بولتے نہیں بولتے؟ بہت ولی نہ بنو, یہاں بھی لوگ یہی کہتے ہیں. بہت لگ رہا ہے حرم سے ویسا کہ جو صدق دل سے نبی کا غلام ہو جائے, جو صدق دل سے نبی کا غلام ہو جائے, تو اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے, تو اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے. جب بات آتے دونوں طرف سے رشتوں کی بات آیا کرتی, لوگ کہہ دیا کرتے سمجھی جی چاہے آپ 10 مہینے کا وقت لے لو کوئی بات نہیں, بہت خوشی سے ٹائم. یہ ٹائم دینے والا پورے بے ایمان, بھیا برا نہ بنے گا, یہ پورا کوا ہے, بڑا چالاک ہے. کیا چاہتا ہے کہ جب ہم ٹائم بڑھا کے دیں گے اتنے دنوں میں یہ تیاری کرے گا, کچھ تو کھیت بیچے گا, نہیں ہوگا تو گاڑی بیچ ڈالے گا, اور نہیں ہوگا تو کہیں سے قرضہ لے کے آئے گا, ہمارا کام یہ کر دے گا. یہی ہے کچھ اور بھیا, بہت کتنے سیدھے ہو نہیں بنے ہو.
सीधा कोई है नहीं। होना कितना था? इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीजों में देरी न की जाए, ताखीर न की जाए। कई चीजों में? हमारी अपनी बात नहीं है भाई। कि मुकम्मल अगर इत्तिबाए नबी है, मुकम्मल अगर इत्तिबाए नबी है, खुदा की कसम वो बशर जन्नती है, खुदा की कसम वो बशर जन्नती है। 3 चीजों में हमारे आका ने फरमाया देरी न की जाए, ताखीर न की जाए, वरना नुकसान हो जाएगा। क्या चीजें भैया? और मालूम तो होगा ही जरूर, लेकिन बोलना मुश्किल है। कौन कौन सी चीज? जनाजा तैयार हो जाए तो कफन और दफन में देरी नहीं करनी चाहिए। नमाज का वक्त हो जाए टाल मटोल न किया जाए। क्यों? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। नमाजें अपने वक्त मुतय्यना ही में फर्ज है। टाल मटोल करोगे कहीं नमाज का वक्त ही न निकल जाए। एक बात और ज़िम्मन अर्ज कर दूं कि बाज़ वक्त ऐसा होता है कि ईशा की नमाज में देरी हो जाती है, आदमी सफर से आया, बीमार पड़ा, दवा खा ली, खांसी वाली दवा खुली, 4 घंटे ऐसे पड़ा रहा, पता चला उसकी आंख खुली सुबह 4 बजे, उठा ही नहीं। तो सुबह 4 बजे के बाद यानी 4:45 तक करीब करीब इस वक्त सहरी का वक्त होता है। जब तक सहरी का वक्त है तब तक ईशा का वक्त रहा करता है, लेकिन बिना वजह ताखीर करना उससे सवाब घटेगा, कराहियत पैदा होगी, और मजबूरी की वजह से टाइम बढ़ जाए तो सवाब पूरा मिलेगा, कोई कराहियत नहीं आएगी। हर एक बात मैंने गोशगुजार की अर्ज की। एक बात और अर्ज कर दें, जरा सा आगे है जबरन जहन के अंदर, वो जरा सा हम गोशगुजार कर दें कि मान लीजिए जोहर का वक्त आजकल, असर का वक्त शुरू हो जाता है 3:40। अब लखनऊ के यहाँ के टाइम हो सकता है कुछ 1-8 मिनट का फर्क हो, तो मान के चलिए 3:40 पे असर का टाइम शुरू हो रहा है। आदमी ने समझा कि अभी तो जोहर का वक्त बाकी होगा, उसने पढ़ा 3:45 बजे जोहर की नमाज अदा की नियत बांधकर, नियत करता हूँ 4 रकात नमाज पढ़, वक्त जोहर वास्ते अल्लाह ताला के उसने पढ़ लिया कि अभी इसका वक्त होगा। बाद में पता चला कि वक्त जोहर का बाकी नहीं था, असर का शुरू हो चुका था, वो तो 3:42 ही पे खत्म हो चुका था जोहर का टाइम, लेकिन उसने नियत ऐसी बांधी थी वक्त जोहर वास्ते अल्लाह ताला के। उलमा बैठे, जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूंगा, तो ऐसी नियत बांधने पर नमाज तब भी अदा हो जाएगी, लेकिन अब कज़ा मानी जाएगी, दोहराना तब भी नहीं पड़ेगा। मसला याद रखिए, दोहराना तभी, नमाज अदा हो जाएगी, अब कज़ा मानी जाएगी, लेकिन नमाज मान ली जाएगी, नमाज को दोहराना नहीं पड़ेगा। पता चला आपने 3:30 बजे नमाज पढ़ी, नियत करता हूँ 4 रकात नमाज पढ़, आज की जोहर की कज़ा वक्त असर अभी 3:30 बजा, पता चला 4-6 मिनट बाकी है, अब आपने नमाज पढ़ ली कज़ा के साथ। किसी ने बताया कि भाई साहब अभी तो जोहर का टाइम ही बाकी था, आपने कज़ा की नियत कर ली, तो अब इस नियत पर भी उसकी नमाज हो जाएगी, कज़ा की नियत की, तभी वो अदा ही मानी जाएगी, तभी वो, अरे बोलो भाई, अदा भैया हजरत मतलब बैठो, तभी वो, हाँ जाओ भाई मोबाइल देखो बस, तभी वो अदा ही मानी जाएगी। अरे समझ के नहीं समझा, ज्यादा बोलने बीमारी होती है। और मैंने पहले बताया अल्लामा शेख सादी की वो बात, ये बात मेरी आप याद रखिएगा। तो अर्ज कर रहा था, ये बात तो मैंने गोशगुजार की है, अर्ज की नमाज के ताल्लुक से, तो अर्ज कर रहा था कि 3 चीजों में ताखीर, नमाज का वक्त हो जाए, जनाजा तैयार हो जाए तो कफन और दफन में देरी, और तीसरी आखिरी वो क्या चीज है भैया? मामला थोड़ा फंसेगा इसमें। जब लड़का शादी के लायक हो जाए, लड़की शादी के लायक हो जाए, जोड़ का रिश्ता मिल जाए तो ताखीर। बाद लोग बड़े चकड़ होते हैं। तय आज हो गई है बात, तारीख 7 महीने और दूर की है, और इस दौरान बराबर अरे बोलो होता नहीं तो प्यारे हिसाब तक बोलो, हलाल है कि हराम, इतना पूछते हैं।
हराम है, जायज नहीं है। आप पूछ लो चाहे ताल्लुक से मसला, इसलिए कि गैर महरम की बात पे तकल्लुफ होना रोजाना की जायज नहीं है। अभी निकाह नहीं हुआ है, बात हुई है, बात करना शुरू कर दिया, जायज नहीं है, नाजायज है, गुनाह है। क्यों लंबी तारीख रखी है? जब बात हो जाती तारीख तय कर लेते, जल्दी से निकाह कर लेते, इतना लंबा वक्त डाल दिया, बीच में बातें होती वो भी नाजायज। बातें करना नाजायज है, गुनाह है। और आगे पीछे करते रहे, बीच में टोकने वाले आ गए, किसी ने जा करके कुछ मर दिया, पता चला बातें खत्म हो गई। ऐसा भी बहुत बार होता है। अरे होता नहीं होता? अल्लाह के हबीब का फरमान, मेरे आका ने कह दिया जमीन आसमान पे जाए, सूरज बजाए, पूरब के पश्चिम की तरफ से निकले और पूरब जाकर डूब जाए, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत, तो इसमें भी देरी न की जाए। तो टाइम कौन मांगे भैया? इतनी बात करके बात खत्म करूंगा। टाइम मांगे कौन? लड़का वाला टाइम मांगे, लड़की वाला नहीं। टाइम कौन मांगे? लड़का वाला टाइम मांगे लड़की के घर वालों से, मुझे 2-4 महीने का टाइम दे दो। क्यों टाइम दे दो? हम जरा कमरा दुरुस्त करवा लें, कुछ और रंग रोगन है वो भी करवा लें, हमारे पास कूलर नहीं है उसका इंतजाम कर लें, अगर गर्मी का मौसम है, हमारे यहाँ बेड नहीं सही जरा वो भी ले आए, और हमारे पास और इंतजाम, कुकर फलाना ढकाना, अर्तन बर्तन गद्दा वद्दा सारा इंतजाम जब हम कर ले, तब निकाह की तैयारी करके निकाह करके। लड़के वाले की जिम्मेदारी है टाइम ये मांगकर इंतजाम करके तब लाए। लड़की के जिम्मे नहीं है, लड़की के घर वालों के। उसने लड़की दे दी, उससे ज्यादा की जिम्मेदारी नहीं है। तुम निकाह पढ़वाने गए, खाना न खिलाए तब भी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर वो खिला दे तो उसका एहसान है। वरना ज्यादा से ज्यादा हजरत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 5 लोगों की बात की है, और हम मुहय्यिस सुन्ना हजरत मौलाना अबरार भक्त साहब हरदोई नव्वरल्लाहु मक़दहू ने 10 की बात कह के बस किया है कि 10 से ज्यादा न जाए। मस्जिद में निकाह पढ़वा के अपने घर ले आए बीवी को, उस रात के गुजरने के बाद जितना चाहे लोगों को अपनी उसाद और हैसियत के मुताबिक खिला दे। सुन्नत तो ये थकाते हैं लड़की वाले को, पता चला 2-4 लाख का वो कर्जदार हो गया, लड़का वाला इंतजार में बैठा हुआ है। एक साहब मिले, उन्होंने पानी पेश किया तो पानी सादा था, बिल्कुल वैसा पानी। मैंने कहा क्या फ्रिज घर में? ने कहा मौलाना 1 महीना बाकी है। मैंने कहा क्या मतलब? 1 महीना बाकी है, लड़की की शादी होनी है, तो लड़के का निकाह होगा, तो लड़की की तरफ से उनका पूरा बन मिला रहे। हमें फ्रिज कहीं लाया कि ये कहाँ से मिलेगा? लड़की के घर वालों, तोहफा है यार, कितना बड़ा तोहफा है यार। अरे बोलो है कि नहीं? उसके जिम्मे नहीं है। जब इंतजाम करो, निकाह करवा के लड़की को घर लाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इतना नहीं, मुजद्दिद मिल्लत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लाने और ले जाने की, मैके ले जाओ लड़की यानी बीवी के माँ बाप से मुलाकात के लिए, जिम्मेदारी तुम्हारी है, किराया तुम्हारा, लाने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसलिए कि निकाह के वक्त कहलाया जाता है कि अलावा नान नफका के 10, 20, 30 हजार महल जो भी जिस हैसियत का आदमी हो, बाद में बोला जाता अलावा नान नफका के इतनी महर के साथ तुम्हारे निकाह में। आदमी बोलता मैंने कबूल किया, तो नान के माने खाना पीना सब, नफका के माने बीमारी इजादी, कपड़ा लत्ता, लाना ले जाना, सब आदमी के जिम्मे। ऐसे बात बन जाएगी नहीं। तो याद रखो समय रिसालत के परम, अगर कामयाबी चाहिए तो सुन्नतों को अपनाना पड़ेगा। अगर सुन्नतों को छोड़ा तो न यहाँ कोई भाव रहेगा, न मरने के बाद कोई भाव रहेगा, टकक नहीं बचेगी, यहाँ भी कोई भाव नहीं रहेगा। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, उसके बाद बात खत्म है। भी सुनना चाहते बात लोग, अब ज्यादा नहीं, उम्र भी देखिए। मैंने पहले बताया कारी साहब 2 साल छोटे में पूरे हजरत लग रहे थे, 10 साल बड़े। आप समझ जाओ ज्यादा करने की हिम्मत नहीं है, तो फरमाइश है तो पढ़े दे रहा हूँ। अरे नहीं है आप तो
दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कम से कम इतना भी दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब लगे कि खाना कम है घर में, मेहमान अचानक रात में 10 बजे आए हैं, तो दरूद पाक पढ़ते जाइए, खाना निकालते जाइए, इंशाल्लाह घटेगा नहीं, घटेगा नहीं इंशाल्लाह। इसमें बड़ी बरकत होती है। और चाहे आप 1000 बार पढ़ लीजिए, सर में गर्मी नहीं पैदा होगी कि दिमाग गर्म हो जाए, इधर उधर होने लगे, नहीं। और अगर कोई सोचे कि बिल्कुल आधा पगले हो जाए, कुल होल्ला पढ़ना शुरू कर दो, 40 बार पढ़े। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का नाम है, इसमें जो है गर्मी है। पढ़िए दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है। कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी अर्श जिसका मकाम है, कभी बोरिया भी फटा हुआ। वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी, वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी। कभी बकरियों का है पासबां, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अंबिया का इमाम है, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अंबिया का इमाम है। उसी रहनुमा पे